story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I'll fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. And even get in the taxi, the kiss in the backseat, tell the driver make it really great. Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm in love with your body. 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 Where did it discover in something brand new? I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Where did it discover in something brand new? I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Where did it discover in something brand new? I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason that I just can't concentrate. I've been trying to fix my pride, but that thing's broken. That thing's broken. Lie, 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 I tried to hide, and now you know it. That I'm at an awful time. I'm at an awful time.
दिन किसान के बागान में ये रसीले लाल टमाटर मेरी पहुंच में कहाँ? हो गए ना तुम्हारी पहुंच में, और सबके भी। क्योंकि सिर्फ 15 रुपए में किसान केचप का छोटू पैक अब सबकी पहुंच में। किसान। Hi guys, where are you all? Getting there. Yeah, I'm on my way. मेरी नजर ढूंढे सिर्फ मुझे ले पहचान तू, it's forever you. The new beauty shopping experience. Tira, forever you. Download the app now. Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, man, I fell off my chair. Gotta get her number, so be like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my head. Doing 15 in a 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Wish fitting and blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out, I don't need no help. Got hips like honey, so thick and so sweet. Man, ain't no curves like hers in them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my head. Doing 15 in a 30, I ain't in no. I'ma take it slow, just as fast as I can. We're out here in the boondocks, raising the birds, tangled up in the Taurus, my lips on hers, on the highway to heaven, headed south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my head. Doing 15 in a 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. I'ma take it slow. I'ma take it slow. I'ma take it slow. I'ma take it slow, as fast as I can. I'm crazy in here. I'ma take it slow, as fast as I can. First time I seen her walk by, man, I fell off my chair. Gotta get her number, so be like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my head. Doing 15 in a 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. The way she fitting them blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out, I don't need no help. Got hips like honey, so thick and so sweet. Man, ain't no curves like hers in them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my head. Doing 15 in a 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. I'ma take it slow. I'ma take it slow. I'ma take it slow. I'ma take it slow. Just as
as fast as I can. यस, एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश हाइड्रेट हॉट वाटर जो कुछ है आप लोग ले लीजिए आराम से। और किसी को प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना नहीं है। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो बहुत बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं। प्लीज लास्ट सेशन तक हमें बने रहना है एक दूसरे के साथ। ओके,
Put some spotlight on the side, and whatever comes, comes too clear. Will you slide on all your nights like this? Will you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side, and whatever comes, comes too clear. All this jewelry ain't no use when it's this dark. This my favorite part, we see the lights that cut so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist to make a charm. Now you was still a naked part. It's like we could die our own heart, like we could die all blonde heart. If we could see it 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We go pipe up, turn up, pipe up. We go light, burn, hot like what? Mama too hot like a furnace. I got 100 G's in my yard. My diamonds gonna shine with the lights dark. You and I take a ride down the boulevard, and your friends really wanna break us apart. Oh, good gracious, staring at my diamonds while I'm hopping at the spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 pages Picasso. The dipping dabble with like a nacho. Took off her panties, down my dancing like Rick Ricardo. She having it when they call her working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, it's in the back of us. Average, I'ma make $1 million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it. Try on all your nights like this. Will you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side, oh yeah. Whatever comes, comes to clear. Do you slide on all your nights like this? Yeah. Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side, and whatever comes, comes to clear. Ain't no use when it's this dark. This my favorite part, we see the lights that cut so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist to make a charm. Playing with still a naked part. It's like we could die our own heart, like we could die all blonde heart. If we could see it 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We go pipe up, turn up, pipe up. We go light, burn, hot like what? Mama too hot like a furnace. I got 100 G's in my yard. My diamonds gonna shine with the lights dark. You and I take a ride down the boulevard, and your friends really wanna break us apart. All your nights like this. Will you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side, oh yeah. Whatever comes, comes to clear. Do you slide on all your nights like this? Yeah.
touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love. Photograph with no t-shirt on. Why you making me wait so long? Wait so long. I promise to keep this a secret I'll never tell. But don't you keep it all to yourself. So won't you take it? I feel like for the first time I am not faking. Fingers on my buttons and now you're playing. Master of anticipation. Don't you keep it all to yourself. Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love. Now my whole week is golden. Can you see me glowing? That's how I feel. And I'm not afraid to fade into emotions. 'Cause I know that this could be something real. Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love.
सर ब्रेक लीजिए अब। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्कआउट सेशन बहुत बढ़िया से चल रहा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग 30 सेकंड का ब्रेक लिए हैं, सभी लोग बैठकर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, हॉट वाटर, जो कुछ आपके पास है उसको ले लीजिए। उसके बाद हम लोग कूल डाउन की तरफ चलेंगे। ओके, तो आराम से बैठकर फ्रेश लीजिए अपना। और किसी को छोड़ के जाना नहीं है। हमारा अमेजिंग हेल्थ टॉक होगा इसके बाद, उसको जरूर सुनना है हमें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉक है। अगर उसको सुनेंगे तो आपका वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, तो इसलिए किसी को भी प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना नहीं है, सभी को लास्ट सेशन तक रुके रहना है। अगर हेल्थ टॉक का इम्पोर्टेंस समझता है वो रुकेगा, और जो चले जाएगा तो समझो कि कुछ मिस कर जाएगा। इसलिए सबको बने रहना है, किसी को भी जाना नहीं है। यस, ओके, आगे सभी लोग अपना अपना पोजीशन लीजिए।
यस, तो यहाँ पर हमारा वर्कआउट सेशन एंड हुआ है। बहुत ही बढ़िया। तो हम सभी लोग सीताराम सर को थैंक यू बोलेंगे एक साथ मिलके, उनको क्लैपिंग के साथ थैंक यू बोलना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। यस, बहुत ही एनर्जी के साथ सर वर्कआउट सबका लिए है। पूरा दिन सबका बहुत एंजॉयमेंट के साथ बीतने वाला है। ओके, तो अभी सर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उनका लास्ट में हम लोग स्टोरी लेंगे, उनके एनर्जी का राज जानेंगे कि क्या खाए, कैसे किए, कितना एनर्जी कहाँ से लाए। ठीक, तो इसको सुनने के लिए सभी को लास्ट सेशन तक हमारे पास बने रहना है, किसी को भी छोड़ के जाना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कौन पर्सन है जिसको फर्स्ट डे, सेकंड डे या 10 डेज हुआ है, अभी तक वो बात नहीं किया है, तो बात करने के लिए हैंड रेस कीजिए अपने आप से, नहीं तो हमें चॉइस करना पड़ेगा। ओके, अरे बात किया करो सभी लोग एक दूसरे से, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन थोड़ा सा और अपने आप को नहीं मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा लगता है बात करने में। तो बात करने से बहुत बढ़िया होता है। सभी लोग हैंड रेस करना चाहिए किसी न किसी को। यहाँ पर तो सब लोग चुप हो जाते हैं एकदम से ना। ओके, किसी का मन नहीं है बात करने का? कल हमारी श्रेया मैडम बहुत बढ़िया बात की थी। इसी तरह सबको बात करना है, अपना रिजल्ट बताना है, कितने दिन हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन इनवाइट किया है, ये सब बताना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर शिवाजी सर दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, थोड़ा उनको जानती हूँ। ओके सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज सुनाई दे रहा है सर? शिवाजी सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है लग रहा है शिवाजी सर को। ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। तो कोई नहीं बात करने वाला है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए किसको किसको वर्कआउट आज अच्छा लगा, आज का किसने एंजॉय किया? यस, कल्पना मैडम हाथ उठा रही हैं कि बहुत बढ़िया लगा। तो आइए कल्पना मैडम से बात करते हैं। ओके, यस मैडम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैडम कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ मैडम। बहुत बढ़िया। तो वर्कआउट आपको बहुत अच्छा लगा सुबह का? हाँ मैडम। यस, आप प्रॉपर कर भी रही थी। ओके, तो मैडम आप कितने दिन से यहाँ पर हमारे इस गुड कम्युनिटी से जुड़ी हैं, हमारी फैमिली के मैं साथ? 1 महीना हो गया मैडम, 1 महीना हो गया। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका मैडम अभी तक 1 महीने में क्या रिजल्ट है? बहुत अच्छा है मैडम, आंग हल्की लगते हैं, मतलब सब जो बुरा आदत है वो निकल गया, अच्छा आदत बहुत अच्छे से आ गया। यस यस यस, तो आपकी जो बैड हैबिट्स है वो चले गए। अभी चले गए। हमें अच्छे हैबिट्स को अपनाना है। ओके, ओके। तो आप हमारा न्यूट्रिशन लेती हैं मैडम? हाँ लेती हूँ मैडम। यस, बहुत बढ़िया। तो आप इसी तरह बढ़िया से वर्कआउट करेंगे, अपने कोच का सुनेंगे। आपको किसने इनवाइट किया है मैडम? अप्पा सर आपने। यस यस, तो अप्पा सर तो हमारे इतने बढ़िया कोच हैं कि जितने लोग हैं यहाँ पर सब अप्पा सर का ही रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। वो जैसे आपको गाइड करेंगे वैसे आपको करना है, 100% आपका रिजल्ट आने वाला है। ओके, ओके मैडम। हाँ, बहुत अच्छे कोच हैं। तो आपको हमसे बात करने के लिए थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। इसी तरह आपको एंजॉय करना है हमारे साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो आज का हेल्थ टॉपिक क्या है, किसी को पता है? अगर पता है, जिसने लिंक पढ़ा होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, और आपका आज का जो हेल्थ टॉक होने वाला है बहुत ही हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको सुनना और समझना। और हो सके तो आप लोग पेन कॉपी अपने साथ रखिए, जो इम्पोर्टेंस उसमें के पॉइंट मिले उसको आप लोग लिखिए। और आज की जो हमारी
मैडम है सीनियर वेलनेस कोच, जिनको 9 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर यहाँ पर हैं, जो बताती हैं गाइड करती हैं उसी पर चल रहे हैं, तो उनको बहुत ही नॉलेज है। तो आइए उनका हम वेलकम करते हैं अपने इस प्लेटफार्म पर, उनको इनवाइट करते हैं हेल्थ टॉक लेने के लिए और हम सभी लोग सुनेंगे। ओके, तो ओवर टू यू सुहासिनी मैडम। यस, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। और मेरे ख्याल से अभी मेरे साथ 34 लोग हैं ना, 34। आपको देखना है आपके आजू बाजू वाले लोग है कि नहीं, जो वर्कआउट कर रहे थे आपके साथ, वो आप ही के साथ है कि नहीं, वो देखना है। 1 सेकेंड। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक सबने बता दिया है मेरे ख्याल से, न्यूट्रिशन है और वर्कआउट भी अच्छे से हुआ है। सबको ध्यान से सुनना है आज के टॉपिक के बारे में। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी। मुझे अपनी स्टोरी के बारे में बात करना है। सभी को जानते, जैसे अभी अभी बताया मैडम ने कि 9 साल का एक्सपीरियंस है, 9 साल। बट जब ये आई थी तभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। आई थी आप ही के जैसे, बिकॉज अपने रिजल्ट के लिए क्या करना होता है ये सभी को पता रहता है क्या? नहीं, सबको नहीं पता रहता, क्योंकि हमें पता नॉलेज ही नहीं रहता जिस चीज का। हमारी माँ घर में खाना बनाती है, हमारे लिए सब कुछ करती है, लेकिन इसका ये खाने का क्या वैल्यू है ये सभी को समझ में नहीं आता है। आता है क्या सबको समझ में? नहीं आता है, क्योंकि हमें इसका डीप नॉलेज नहीं रहता। लेकिन जैसे फैमिली के साथ आई, मैं थी मेरे मदर इन लॉ के लिए, मेरे सासू माँ के लिए, और उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बोन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होना चालू हो गए। तो अभी जो भी स्टोरी हम लोग बता रहे हैं, ये हमारी पर्सनल स्टोरी है, ये हमारी खुद का एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पे कोई भी हम लोग बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करते। और ये सब कुछ अगर आपकी लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो डेफिनेटली आप भी इसमें सुधार कर सकते हैं, राइट? तो ये मेरी स्टोरी है, ये मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहली बार जब भी आई थी 3 महीने में मैंने 15 kg का फैट लॉस किया था। मेरे सासू माँ ने 16 किलो का वेट लॉस किया था। मेरे ससुर जी ने 5 kg का वेट लॉस किया था, और मेरे हस्बैंड नीलेश ने 10 kg का वेट लॉस किया था। तो ये जर्नी हमारी ऐसी शुरू हुई। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने राइट न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लेते हुए अमेजिंग डिलीवरी के बाद 20 kg का फैट लॉस किया। मुझे बहुत ज्यादा स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थे, तो स्किन की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। मैंने बहुत सारा डर्मेटोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट किए थे, मैंने पार्लर ट्रीटमेंट किए थे, लेकिन कुछ भी इतना असर नहीं हुआ था, बिकॉज मेरा अंदर से न्यूट्रिशन नहीं था, है ना। जो मैं ऊपर की ऊपरी खूबसूरती और अंदर से जो हम लोग नरिश करते हैं उसमें बहुत फर्क था। वैसे ही नॉलेज आया, अमेजिंग मैंने डाइट को चेंज किया, लाइफस्टाइल को चेंज किया, और अमेजिंग मेरा रिजल्ट आना चालू हुआ। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन, राइट? तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत सारे लोगों को पता भी रहता है न्यूट्रिशन, है ना। आज की तारीख में न्यूट्रिशन सबकी जरूरत है, किसको नहीं चाहिए न्यूट्रिशन, है ना। आजकल तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी, है ना, वहां पे इको फ्रेंडली मिलता है ना, न्यूट्रिशन वाला ही मिलता है, आप बोल के समझ सकते हैं। क्योंकि गाड़ी की अगर लाइफ बढ़ानी है तो अच्छा वाला पेट्रोल डालो, थोड़ा सा महंगा वाला डालो, ऐसे बोला जाता है। तो अगर गाड़ी के लिए जरूरत है, हम पेट्स के लिए हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन पीडियाश्योर वगैरह, पेडिग्री वगैरह लाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेके आते हैं। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो ये न्यूट्रिशन वर्ड हमारे जिंदगी से जैसे गायब ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी बराबर से नॉलेज नहीं रहती। तो आज थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, क्यों होना चाहिए। तो न्यूट्रिएंशन में न्यूट्रिएंट ये चीज, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी खाना हम खाते हैं, जिसमें से भी हमें हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरत होती है, जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, उसी को न्यूट्रिएंट बोला जाता है। अभी ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। आप जो भी खाना खाते हो, बाय द वे एक चीज बता दूं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, सारे खाने न्यूट्रिएंट नहीं होते, खाने सारे खाने न्यूट्रिशियस नहीं होते। लेकिन अगर आप खाने में न्यूट्रिशियस खाना अगर सिलेक्ट करोगे तो वो आपकी फूड बन सकता है, वो आपकी एनर्जी बन सकता है, राइट? तो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि सब खाना जो भी आप मार्केट से खरीद के लेके सब न्यूट्रिशियस होना जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर आप न्यूट्रिशियस चीज सिलेक्ट करके लेके आओगे तो वो फूड कैटेगरी में आएगा। तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको वो न्यूट्रिएंट से आपको बॉडी को आपकी एनर्जी मिलती है, फ्यूल मिलता है, आपके खाने का जो पेट्रोल बोलते हैं ना, बॉडी को चलाने के लिए, आपके शरीर को चलाने के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है, वो एनर्जी की जरूरत होती है, वो वहां से मिलती है। ऑफ कोर्स आपको आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। रिपेयरिंग के लिए जो चीज यहाँ पे ये पृथ्वी तल पे आई है, चाहे वो मशीन होने दो या इंसान होने दो या कोई भी जानवर होने दो, है ना, ह्यूमन बीइंग होने दो या कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग रहने दो, तो वो सारे लोगों को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस यस, आपका आवाज म्यूट करना है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की तो जरूरत पड़ती है। रिपेयरिंग की नौबत कब आती है, जब आप मेंटेनेंस में नहीं रहते, है ना। मेंटेनेंस कभी करना है, हर 6 महीने में बॉडी का मेंटेनेंस करना रहता है, बॉडी चेकअप हर 6 महीने में करना जरूरी होता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो भी चैलेंजेस है वो बढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली, और फिर चैलेंजेस कन्वर्ट हो जाएगी बीमारी में। इसलिए आपके बॉडी को मेंटेन करना जरूरत है, और ये मेंटेनेंस जो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपके न्यूट्रिशन के वजह से होता है। यस, मैं यहाँ पे आप सभी को जो भी नॉलेज दे रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है। पॉसिबल रहेगा आपके पास अगर नोट डाउन करके रख सकते तो रखिए, क्योंकि इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज भी होने वाला है, राइट। तो बैलेंस क्या होना चाहिए, है ना, हमारा सब ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। पहले के जमाने में, बहुत साल पहले ऐसे लोग बोला जाता था कि न्यूट्रिशन में बैड न्यूट्रिएंट्स और गुड न्यूट्रिएंट, ऐसा भी एक वर्ड आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैड और गुड ऐसा कुछ नहीं रहता है, सारी चीजें बैलेंस होनी जरूरी थी। क्योंकि भगवान ने जो भी चीज हमें दी है, ये नेचर से जो भी चीज हमें मिली है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, है ना। हमें भगवान के ऊपर बिलीव है, नेचर के ऊपर बिलीव है, तो अगर वो ये पृथ्वी तल पे आई है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो काम है। लेकिन अगर उसको अति प्रमाण में, अगर इम्बैलेंस वे से हम अगर लेंगे, तो डेफिनेटली या तो वो वेस्ट होने वाली है, या तो वो अनहेल्दी होने वाली, मतलब अनयूज होने वाली है। तो आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क को ध्यान रखना है, 3 इंपॉर्टेंट पोल के ऊपर ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो बैलेंस तरीके से लेना जरूरी है, अलग अलग तरीके के पोर्शन में लेना जरूरी होता है, और मॉडरेशन में लेना जरूरी होता है। मतलब क्या, आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की फैट नहीं लेना चाहिए। अब ये फैट क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कैलोरीज नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हम लोग गलत तरीके से लेते हैं करके वो चैलेंजेस दे रहे हैं। तो कौन से गलत तरीके होते हैं, क्या हमें लेना चाहिए, आज ये सारी चीजें देखना है। तो बैलेंस यही एक की होता है जो कि आपके सेहत को बहुत अच्छे से रख सकता है। तो यहाँ पे 6 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ऐसे कौन से 6 मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। पहला है वाटर, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है फैट, पांचवा है विटामिन, और छठा है मिनरल। अभी यहाँ पे जो मैंने 6 न्यूट्रिएंट्स बताए, ये इसके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अभी सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। यस, सीताराम सर ध्यान दीजिए यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे 6 न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझेंगे, आप अगर इनको नहीं जानेंगे, तो आपको ये इसकी शरीर में क्या जरूरत है ये समझ में नहीं आएगा। तो पानी, डेफिनेटली पानी सभी को पता है। कल ही हमारा डाइड्रेशन का टॉपिक हुआ था, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया था। हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है। आपको बता दूं, हमारी बॉडी हमारे अर्थ के हिसाब से मैच होती है ना। अर्थ के ऊपर कितना 69% पानी होता है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी भी वैसे ही बनी है। वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हमारे 1/2 और 3/4 ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट वाटर, क्योंकि हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो या न्यूट्रिएंट्स इधर से उधर जाते हैं, सेल्स तक जाते हैं, टिश्यू तक जाते हैं, इनको पहुंचाने का काम पानी करता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो ये इसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो होगा नहीं। बॉडी में से दिन भर में हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर का अगर टेम्परेचर हॉट है तो आपकी बॉडी अंदर से वो टेम्परेचर को मैच करने के लिए ना पानी को रिलीज करती है, वाटर को रिलीज करती है, ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे, जिसकी वजह से, जिसको आप लोग स्वेटिंग बोलते हैं, है कि नहीं, स्वेटिंग बोला जाता है।
अगर ये ज्यादा प्रमाण में चला गया, मतलब अगर शरीर से कुछ निकल रहा है तो उसको डालना भी जरूरी होता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। पानी हमारे बहुत सारे न्यूट्रिशन को डिसॉल्व करने का काम करता है, मिक्स करने का काम करता है, राइट। खाना बनाने में हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के बिना खाना भी अपना बनता नहीं है। तो इवन जॉइंट्स के लुब्रिकेशंस के लिए, मूवमेंट के लिए, फ्लक्चुएशन के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिएंट है। दूसरा न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स ये ऐसा फूड सोर्स है। अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे जो न्यूट्रिशन फैमिली में 3 इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मतलब क्या? जिसकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होनी होते, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो। और माइक्रो मतलब क्या? जिसकी जरूरत है लेकिन वो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में चाहिए। तो हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम 2 मेजरली हिस्सों में डिवाइड है। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसी माइक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट्स एक पहली फैमिली मेंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। अभी हमें मिलता कहाँ से है ना? ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है। अगर दिन भर वेट लॉस जर्नी में और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे ना, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, आपकी एनर्जी डाउन हो सकती है, आपको बहुत सारा वीकनेस आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको हो सकती है। तो आपको ये फूड सोर्स कहाँ से मिलता है? आपको जैसे कि धान है, होल ग्रेन्स है, सीरियल्स है, राइस, फ्रूट्स, मिल्क, योगर्ट, स्वीट्स, ये इन सब से जिससे भी कैलोरी जनरेट होती है, हेल्दी वाली कैलोरी जनरेट होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 टाइप के हैं। एक तो स्टार्ची या फिर कॉम्प्लेक्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को जल्दी समझ में नहीं आता है, ये कि शरीर में कोई निवाला हम लोग डालते हैं और बॉडी को उसको समझने के लिए टाइम लगता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वो स्लो प्रोसेस में डाइजेस्ट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या? जो खाते ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए जो हेल्दी वाला कार्बोहाइड्रेट्स है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कोई भी चीज धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो वो बहुत ज्यादा हर सेल्स तक पहुंचेगी, हर पेशी तक पहुंच सकती है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल जैसे भी मैंने बताया, जिसमें ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है, या प्रोसेस फूड होता है जो मार्केट में खरीद के मिलते हैं आपको ना, पैकेट वाले प्रोडक्ट रहते हैं, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। वहीं पे स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? जो कि जिसमें फाइबर होता है, रफेज होता है कि नहीं, वेजिटेबल्स होते हैं जिससे छिलके होते हैं, रेशाएं होती है, ऐसी चीजें हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब अगेन दूसरा न्यूट्रिएंट क्या है? तीसरा न्यूट्रिएंट क्या है? अभी पहले वाटर देखा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स देखा, फिर अभी आता है फाइबर। फाइबर हमारे गट हेल्थ को, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने का काम, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं सबका सब हमारा खाना कन्वर्ट होता है क्या एनर्जी में? नहीं, हमारे बॉडी फिल्टरिंग का काम भी करती है। जो चीज हमारे शरीर के लिए नहीं चाहिए उसको फेंकना भी जरूरी होता है, जिसको मल बोलते हैं ना। हम जो सुबह सुबह हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, हमारा बाउल मूवमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। आपने देखा रहेगा बहुत ही छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, अगर माँ ने कुछ गलत सलत खा लिया तो वो बच्चे को दिक्कतें आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसका डाइजेशन उतना पावरफुल नहीं था, उसको लैट्रिन को बहुत जल्दी हो जाता है। एग्जैक्टली अगर आपका लैट्रिन प्रॉपर, आपका फाइबर इंटेक प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट में बहुत ज्यादा रफेज नहीं है, तो डेफिनेटली आपको डाइजेशन की दिक्कतें आ सकती है। तो आपको ये क्या करता है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए? एक तो सबसे पहले तो डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए मदद करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए मदद करता है, डायबिटीज जैसे, हार्ट डिजीज जैसे, कोलेस्ट्रॉल जैसे, क्योंकि उसमें से गंदगी खींच के निकालने का काम ये फाइबर करता है। चाहे वो कुछ भी होने दो, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल होने दो या कुछ भी, तो गंदगी को खींच के उसको शरीर से बाहर फेंकने का काम हमारा फाइबर करता है। सो ऑफकोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, इसको हमें लेना जरूरी है। प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे जो सेल्स बने हैं, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चरिंग बनी है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हमारे सेल्स के, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन के वजह से बने। अभी ये प्रोटीन हमारे मसल्स का खाद है। हमारे शरीर में हम जब भी वेट लॉस जर्नी के लिए आते हैं तो हमें क्या करना रहता है? हमारे शरीर से हमें फैट को हटाना रहता है, रहता है और मसल मास को बढ़ाना रहता है ना। जब ये इस तरीके से हम लोग वेट लॉस जर्नी में जाते हैं, या रादर वुड से कि फैट लॉस जर्नी में जाता है, तो हमारा हेल्दी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाता है। तो हमें प्रोटीन ये बहुत ही जरूरी होता है।
कितना जरूरी होता है हमारे पर केजी के हिसाब से 1.2 ग्राम। अगर आप बहुत ही नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे तो आपको कम से कम 1 किलो के लिए 1.2 ग्राम इतनी जरूरत होती है, जिसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या आप स्पोर्ट्स में है या कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, राइट। तो आपको ध्यान देना, आपके वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। और हम अमेजिंग, ये आपके मसल्स को टोन अप करने का काम, मतलब आपकी बॉडी में से जब फैट निकलेगा तो आपकी बॉडी लूज नहीं पड़नी चाहिए, अगर उसको टोन अप रखना है तो प्रोटीन बहुत ही बढ़िया काम करता है। यस, अगेन प्रोटीन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एनिमल सोर्स प्रोटीन होता है और दूसरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। बट यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में बनते हैं, ये सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बनाती। कुछ प्रोटीन सोर्स जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, इसलिए हमें कंप्लीट प्रोटीन सोर्स लेना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स किसको बोला जाता है? ये एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन होता है उसी को कंप्लीटली प्रोटीन सोर्स बोला जाता है। हाँ, कुछ वेजिटेरियन सोर्सेस भी है, लेकिन उसको कॉम्बिनेशन में जब हम लेंगे तभी ये कंप्लीट हो जाता है। आगे वाला जो न्यूट्रिशन है, फैट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फैट लेना चाहिए, अरे बाप रे, अब तो फैट लॉस करने के लिए आया, फैट कैसे लेंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में एसेंशियल फैट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी के में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो फैट से बने हुए हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हेल्दी फैट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि ब्रेन और हमारे बॉडी का सबक्यूटेनियस फैट, और हमारे बोन्स में जो कार्टिलेज रहता है उसकी लुब्रिकेशन मेंटेन करने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है, बराबर। हमारे बॉडी में जो भी कुर्चा रहता है, कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो जॉ लाइन होने दो, आपके बोन्स होने दो, आपकी गर्दन होने दो, आपका स्पाइन होने दो, ये सारे की मोबिलिटी के लिए आपको एक एसेंशियल फैट की जरूरत पड़ती है ना। बट एसेंशियल फैट हमारे यहाँ पे कहाँ से मिलता है? उसके बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में हमें बटर से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, सलाद ड्रेसिंग से मिलता है, कुछ नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स आ गया, पंपकिन सीड्स आ गए, बहुत सारे सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आ गया, ऐसे बहुत सारे सीड्स से आपको ऑयल सोर्स मिलता है, फैट सोर्स मिलता है। लेकिन सारे फैट सोर्स हेल्दी नहीं रहते, कुछ फैट सोर्स अनहेल्दी भी रहते हैं, जिसको अनहेल्दी फैट सोर्स को सैचुरेटेड फैट भी बोला जाता है, मतलब वो जमा हुआ रहता है, उसको बर्न करने के लिए आपको हाई इंटेंस वर्कआउट करनी पड़ती है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट रहता है, जो आपके रूम टेम्परेचर पे भी बॉडी मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, अगर आप कोई भी चीज को घर में, जैसे कि घी को और बटर को, अगर रूम टेम्परेचर में आप बाहर रूम टेबल पे रख देंगे तो वो मेल्ट रहेगा, कौन सा वाला? घी मेल्ट होएगा, लेकिन बटर या चीज मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है। उसको बर्न करने के लिए आपको एक टेम्परेचर देना जरूरी होता है। तो रूम टेम्परेचर पे जो ऑयल मेल्टेड रहता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है, राइट। अभी ये जो फैट होता है, ये हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ये वर्ड से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। बट मैं बता दूं, हमारे बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल, एलडीएल, एचडीएल मतलब जो हाई डेफिनेशन वाला होता है, एलडीएल मतलब लोअर, जो खराब वाला होता है, जो हमारे बॉडी के ब्लड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का काम ये कोलेस्ट्रॉल करता है। हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम भी ये कोलेस्ट्रॉल करता है। तो डेफिनेटली डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए भी ये काम कोलेस्ट्रॉल करता है। तो आपको ध्यान देना, अगर आप एसेंशियल फैट हमारे डाइट में रख रहे हैं, जैसे कि ओमेगा 3, ये एसेंशियल फैट में आता है, तो आपकी हार्ट हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है, आपकी शुगर लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है, आपको बहुत सारे चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए मदद होती है ये अच्छे एसेंशियल फैट की वजह से। अभी मेन ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो विटामिन होता है। विटामिन, सारे विटामिन हमारे काम के होते हैं क्या? कुछ काम के होते हैं, कुछ इतने काम के नहीं होते, बट जरूरी होते हैं, है ना। काम मतलब सब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। जैसे कि मेरे हाथ में सारी चीजें अगर मैं लेने की कोशिश करूंगी तो आएगा क्या? नहीं, डिपेंड होता है हम कितना लेते हैं। तो ऐसे 13 एसेंशियल विटामिन होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अभी ये विटामिन में भी दो टाइप की विटामिन होता है, एक तो होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। अभी तक जितने हम लोगों ने चीजें देखी, जैसे पानी, फैट,
अभी ये विटामिन को लेने के लिए छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, जिसको मैंने बोला था, उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट सोल्यूबल मतलब एसेंशियल फैट की जरूरत पड़ती है, और वाटर सोल्यूबल मतलब पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये दो विटामिन बहुत जरूरी होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होती है ये विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अभी ऐसे कौन से विटामिन है जो पानी में घुलते हैं, और ऐसे कौन से विटामिन है जो फैट में घुलते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई, के, ये अगर मैं खा रही हूँ किस सोर्स से, फूड सोर्स से, और अगर मैं एसेंशियल फैट नहीं ले रही हूँ, जैसे कि ओमेगा 3 सोर्स नहीं ले रही, तो ये विटामिन बॉडी में डाइल्यूट नहीं होंगे, वो घुलेंगे नहीं, क्योंकि उसको फैट चाहिए घुलने के लिए, क्योंकि हमने फैट दिया ही नहीं। तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, बॉडी शरीर से फेंक देगी। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, उसमें से 70% हमारे विटामिन और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स पानी में ही घुलते हैं, इसलिए पानी का पीना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी, ये ऐसे दो विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और बॉडी में इसका मेजर रोल होता है। विटामिन बी स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी इम्यून हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। और विटामिन सी भी, विटामिन ए काम क्या करता है आप देख सकते हैं कि आपकी हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर के लिए विटामिन ए, आंखों की सेहत के लिए विटामिन ए काम में आता है, अच्छे बोन्स के लिए, अच्छे टीथ के लिए विटामिन ए काम में आता है। तो ये फूड सोर्स कहाँ से मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स आ गया, ग्रीन वेजिटेबल्स आ गया, येलो कलर के और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स आपको खाने हैं ज्यादा से ज्यादा, लीवर आ गया, जैसे कि कोई एनिमल्स के ऑर्गन्स होते हैं उसी में से भी सोर्स मिलता है, मिल्क से, चीज से, एग से मिलता है। तो ये जो विटामिन होता है हमें बहुत ज्यादा फंक्शनिंग। विटामिन डी काम क्या करता है, ये हमें सन से मिलता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अच्छे बोन्स के लिए मदद करता है। विटामिन ई क्या करता है, आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, मसल्स होता है ना, जैसे आपके मसल्स कभी कभी वीक होना चालू हो जाता है, लूज पड़ना चालू हो जाता है, वो दिक्कतें देना चालू कर देता है। तो विटामिन ई आपके मसल्स को टाइटन करने का काम करता है। ये कहाँ से मिलता है आपको, ड्राई बीन से मिलता है, नट से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, ग्रेन, कुछ ग्रेन से मिलता है। ये रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने का काम विटामिन ई करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के कहाँ से मिलता है, ये जिनको भी जैसे कि किसी को एनीमिया की दिक्कतें आती है ना, ब्लड में खून की कमी होती है, उसमें भी ये विटामिन के काम में आता है। आपके अगर कहीं पे ब्लड, जैसे कि किसी को घाव हो जाता है ना, किसी को जख्म हो जाता है, तो उसका घाव जल्दी भरता नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लोट जल्दी रुकता नहीं है। ब्लड जो निकलता है शरीर से, वो निकलता है कि वो क्लोटिंग नहीं करता है, वो गुठली नहीं जल्दी बनाता। ये जस्ट बिकॉज ऑफ उनके शरीर में विटामिन के की मात्रा कम होती है। विटामिन बी, जैसे मैंने बताया, आपके ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के लिए, जो वेन्स आपके बॉडी से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो सिग्नल पास करते हैं, उसकी अच्छे सेहत के लिए विटामिन बी अच्छे से काम करता है। मसल्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये कहाँ से मिलता है आपको, ये सीरियल से मिलता है, ड्राई बीन से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है। विटामिन बी के सोर्सेज बहुत सारे हैं, वो आपके बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए मदद करता है। विटामिन सी आपकी इम्यून हेल्थ को बढ़िया रखने का काम करता है। ये ज्यादा करके सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कि खटाई वाले फल, खटाई वाले फलों से आपको ये विटामिन सी डेफिनेटली मिलेगा। कीवी से बहुत अच्छे से मिलता है। आपने देखा रहेगी कि कोरोना टाइम में ना बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, ब्लड सेल्स में फर्क पा रहा था, और किसी किसी को बहुत सारे इम्यून हेल्थ डाउन हो रहे थे। तो विटामिन सी आपकी इम्यून हेल्थ को बहुत ही बढ़िया रखता है, आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है। कोई भी घाव अगर होने के बाद वो जल्दी ठीक होना है ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो विटामिन सी डेफिनेटली काम करेगा। आपके बोन्स के लिए भी अच्छे से काम करता है। बॉडी में फाइट, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन आपको इंटरनल हो रहा है, या आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, अभी ये रेनी सीजन में बहुत सारे लोगों को होता है, तो ये विटामिन सी बहुत अच्छे से मदद करता है। अब ये मिनरल जो होता है ना, ये बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आपको जब यंग रहते तो कोई दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जैसे आप बूढ़े होने चालू हो जाते हैं आपको इसके सिम्टम्स समझ में आते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, ऑर्थोपोरोसिस के प्रॉब्लम, है ना, जॉइंट्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको दिखनी चालू हो जाएगी। अभी ऐसे कौन से मिनरल है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम,
पोटेशियम, आयरन, ये बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन इसकी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कैल्शियम डेफिनेटली आपके हेल्दी बोन्स के लिए मदद करता है। अगर ये डेफिशिएट हो गया तो आपके दांत और आपकी हड्डियां ये कमजोर होनी चालू हो जाती है, और एज के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली टूटने चालू हो जाती है, एक तरीके का बीमारी हो जाती है। आपने देखा रहेगा ये ज्यादा करके सीनियर सिटीजन में ये माना जाता है, उनके दांत अचानक से टूट जाते हैं, उनके बोन्स में क्रैक हो जाता है, और ये आज की तारीख में यंग जनरेशन में भी हो रहा है क्योंकि उनके बोन्स हेल्दी ही नहीं है। आयरन डेफिनेटली मैंने जैसे बताया, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने का काम करता है, ये रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने का काम करता है। ये कहाँ से मिलता है आपको? अंडे में जो येलो कलर का रहता है, उस जिसको बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, उससे भी हमें ये थोड़ा बहुत सोर्स मिलता है। ड्राई बीन से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है, लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, इससे मिलता है, नट से मिलता है। तो आपको आयरन लेना, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को ये बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज उसको ये मिनरल की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। सोडियम मतलब हमारे बॉडी को सॉल्ट का जो बोलते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम अगर आपका बैलेंस रहेगा तो आपकी बॉडी बल्कि नहीं दिखती है ना, फूगी हुई नहीं दिखती। तो सोडियम आपके बॉडी मतलब नमक की मात्रा आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए ये बताता है सोडियम, ये मिनरल। बहुत सारे लोग नमक छोड़ देते हैं ना, डाइट में नमक छोड़ देते हैं, बट नमक का अपना खुद का कुछ काम है। हमारे बॉडी को मेंटेन करने का, फ्लूइड को मेंटेन करने का काम ये नमक करता है, ये न्यूट्रिशन को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम सॉल्ट बोला जाता है, जिसको सादी सी भाषा में सॉल्ट बोला जाता है। ये अलग अलग इसमें सोर्स से मिल जाता है आपको, बराबर। इसका मदद क्या होता है, ये आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन, अगर ज्यादा सोडियम कम हो गया आपको लोअर बीपी का प्रॉब्लम, लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हाई हो गया तो हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ये सारी न्यूट्रिशन अभी तक मैंने जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिर्फ अंडरवेट वाले लोगों को ही नहीं होती, ये ओवरवेट वाले लोगों को भी होती है, जिसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है तो आपको अच्छा डाइट लेना जरूरी होता है। तो हमारे पास अमेजिंग ये Formula 1 कैन है, न्यूट्रिशन शेक है, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अब तक मैंने जितने सारे न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स बताए वो सारी चीजें इसके अंदर है। इसके अंदर टोटल 18 कुछ विटामिन एंड मिनरल्स है। इसके अंदर हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर है, प्रोटीन ब्लेंड है, सोया और वे का प्लेट प्रोटीन ब्लेंड है, और ये शुगर फ्री है, लो इन जीआई है, और इसकी जो शुगर लेवल है ना बहुत ही कम है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। जरूरी नहीं कि डायबिटीज है उन्होंने ही लेना है, ये अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के भी ले सकते हैं। और हमारे पास अमेजिंग फ्लेवर है, इसके अमेजिंग 8 से 9 फ्लेवर है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है जब हम ऐसे न्यूट्रिशन के साथ जिंदगी जीते, और इसी न्यूट्रिशन को हमने कंज्यूम करते करते बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकाले हैं। तो यहाँ तक मेरा पार्ट था। बहुत सारे लोगों को आज मैंने इंफॉर्मेशन दिया है कि न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बट बिफोर दैट मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज रिलीज करना चाहूंगी, आपको जितना भी समझा है, राइट। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है और फटाफट से सबमिट करना है। यस, थैंक यू सो मच। उसके बाद सपना मैम के पास। यस, तो यहाँ पर मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा है सभी को दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा है? यस, तो मैडम ने देखो सभी को दिख रहा है, सब लोग सिलेक्ट भी कर रहे हैं, राइट। सिलेक्ट करना आप सबको, क्योंकि मैंने अभी जो भी इंफॉर्मेशन दिया बहुत ही प्रैक्टिकल था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आपको देखना है क्या आपने अभी तक जो सुना वो सही सुना कि नहीं। यस यस यस, तो सबको और ये बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 41%। सबको आंसर करना है से ना। एग्जाम में तो हम लोग ऐसे ही छोड़ के आते हैं क्वेश्चन पेपर, नहीं ना, तो दिखना लेना जरूरी होता है।
उसका मैं करेक्शन डेफिनेटली करूंगी। यस, अभी हम लोग पोल को एंड करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये था कि विटामिन पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए, मतलब डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिशन काम में आता है। कुछ लोगों ने विटामिन ए बोला है, कुछ लोगों ने विटामिन सी बोला है, 73% लोगों ने फाइबर बोला है। तो फाइबर ये सही आंसर है, फाइबर ये सही आंसर है। विटामिन ए आपके आंखों के हेल्थ के लिए है, जैसे मैंने बताया था। विटामिन सी आपके इम्यून हेल्थ के लिए अच्छा है, और फाइबर आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। वेरी गुड, गुड ट्राई। और हड्डियों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला है कैल्शियम 87, जो कि सही है। विटामिन डी वो भी सही है। मैग्नीशियम किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया, मैग्नीशियम किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम आपके विटामिन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम, मतलब मैंने आपको कोई चीज दी है लेकिन आपने ली ही नहीं, तो उसका कुछ मतलब है क्या? तो मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी होता है आपके बोन्स हेल्थ के लिए, इसलिए आपको ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन ये सही जवाब है, राइट। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज था। शेयर रिजल्ट, मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। यस, सो कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड ट्राई। तो बढ़िया लग रहा है आप सभी को कि आपने जो सुना वो बराबर से सुना कि नहीं, राइट। यस, ओवर टू यू सपना। यस, तो बहुत बढ़िया हेल्थ टॉक हुआ है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैडम ने सब कुछ बता दिया है। ओके, तो अभी आगे हम चलेंगे सीताराम सर के पास, उनके एनर्जी का राज पूछेंगे। तो सर रेडी हैं? ओके, तो सर आप अपना स्टोरी शेयर कीजिए। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सीताराम इंगोले है। मैं कामोके से बिलोंग करता हूँ और बाय बैकग्राउंड मैं एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस रन करता हूँ। और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के वजह से उधर पूरा दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, और वेट बढ़ने की वजह से मेरे को थायराइड का भी प्रॉब्लम था। बहुत मतलब काम करने में एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी, थोड़ा चलेगा तो दम लगता था, मतलब बहुत कमजोर हो गया था मैं अंदर से। तो ऐसे ही मैं अपना ये एक दिन मेरे कोच अरविंद सर को देखा, तो मेरे को थोड़ा उन्होंने गाइडेंस किया, ऐसा ऐसा मैं यहाँ जगह जाता हूँ और आप भी चलो। मैं इधर ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होके मेरे को अभी 17 मंथ चालू है। पहले 4 महीने में मेरा 19 kg वेट लॉस हो गया, और अभी एकदम हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ मैं। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे कोच अरविंद सर, मनीष सर, अप्पा सर और अपनी कम्युनिटी को। ओके, तो बहुत बढ़िया सर का रिजल्ट है। तो आगे आगे मैं बढ़ूंगी। आज मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो यस, तो मेरा नाम सपना द्विवेदी है, जैसे मैं पहले बताई। इस गुड कम्युनिटी से जुड़े लगभग मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मुझसे पहले मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने 27 kg का वेट लॉस किया है और 12 इंचेस कम किए हैं। जब उनका इतना अच्छा सा रिजल्ट मैं घर में देखी एनर्जी के साथ, तो फिर मैंने भी, मुझे बहुत हेल्थ इशू थे, उसके साथ साथ मैं 10 kg का ओवरवेट थी। जैसे आप मेरे बिफोर फोटो में देख रहे हैं, ये 2 साल पहले की फोटो है, बहुत दिन की नहीं है, मैं निकाली थी। और देखिए मैं कैसी अनहेल्दी, ऐसे लग रहा है जैसे 55 साल की। ओके, और अभी आप लोग देख रहे हैं आज मैं कैसी हेल्दी और एनर्जेटिक हूँ आप सबके सामने। तो मैंने अपने कोच का सुनी, उनको अपने बारे में बताई, जैसे सुहासिनी मैडम अप्पा सर से मिली और उनको बताई कि मुझे ये हेल्थ इशू है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए और अपना जो गुड हैबिट्स है उसको अपनाइए, फॉलो कीजिए। तो मैं उसी के साथ 80-20 का फार्मूला अपना करके मैंने अपने बॉडी से 10 kg का फैट लॉस की, और जब हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चालू की, तो मेरे बॉडी से जो इतने
अनहेल्दी थी लाइफ मेरी, वो हेल्दी हो गई, एनर्जेटिक हो गई और मैं फिर बहुत आज अपने लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं वेलनेस कोच बनने का डिसीजन ली और बहुत से फैमिली की हेल्प भी कर रही हूँ। आगे भी करती रहूंगी। यही मेरे लाइफ का मेन मकसद हो गया है अभी इस समय। हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग अपने वर्ल्ड को हेल्दी और हैप्पियर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, तो ये मेरी शॉर्ट में स्टोरी थी। तो आगे एक अच्छे बाय। आज किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है? किसी का नहीं है? यस, संगीता मैडम हैंड रेज की हैं। ओके, तो बताइए मैडम, क्या किसका बर्थडे है, एनिवर्सरी है? मेरी दीदी है शिल्पा, उसका बर्थडे है आज। यस 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 यस, तो ठीक है। मैं हैप्पी बर्थडे शिल्पा मैम सभी को बोलना है और मैं जो है उनके लिए सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ। ओके, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. यस, तो हमारी शिल्पा मैडम आज यहाँ पर बहुत दिन के बाद आई हैप्पी हैं। बर्थडे शिल्पा। Happy birthday, Shilpa. हैप्पी बर्थडे मैडम। यस यस, हैप्पी बर्थडे हैप्पी मैम। बर्थडे शिल्पा हैप्पी वहिनी। बर्थडे। ಅಜ್ಜಿ ನಂದು ಮಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ. यस, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. तो यहाँ पर यस, तो यहाँ पर हमारी आवाज आ रही सबको? यस, शिल्पा तो मैडम हम का यहाँ पर स्टोरी शिल्पा लीजिए। मैडम का स्टोरी सुनेंगे और ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर शिल्पा मैडम एक नहीं 3 बहनें इकट्ठा हमारे इस हेल्दी गुड फैमिली में जुड़ी हुई हैं और बहुत दिन से सबका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो शिल्पा मैडम से सुनेंगे। ओके, ओवर टू यू शिल्पा मैडम, थोड़ा अपने बारे में बताइए। यस यस, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मी शिल्पा ठोंबरे, नातेपुतेहून बिलॉंग करते. मला या कम्युनिटीला जॉईन होऊन 1 वर्ष पूर्ण झाले. पहिल्या 3 महिन्यातच मी 10 किलो वजन कमी केले. मला आता हॅप्पी हेल्दी राहायचंय. या कम्युनिटी जॉईन झाल्यापासून मला भरपूर काय शिकायला भेटलं. भरपूर चेंजेस झालेत. आता हॅप्पी और हेल्दी राहायचंय. माझी कोच आहे पल्लवी मॅडम आणि अरविंद सर. यस यस, थँक्यू थँक यू। कम्युनिटी, काय थँक्यू शिकायला मिळालं शिल्पा मॅडम तुम्हाला? सवयी, लवकर उठणे, मला वाटत नाही तुम्ही एक्सरसाइज उशिरा करणे. उठत असाल. तुम्ही उठता पण तुम्ही पहिले दुसऱ्यांसाठी उठायचं. उठत होतात, राईट? नाही आता मुलं मोठी आहेत मॅडम. हा का? बर बर. तुम्हाला हा. कसं वाटतं? काय चॅलेंजेस हा. होते तुम्हाला? वेट होतं जास्त जास्त वेट होतं. ओके. वेट होतं. कोणचा रिझल्ट बघून आता तुम्ही इन्स्पायर मेंटेन. झालात? कोणाचा रिझल्ट पल्लवीला. बघून? पल्लवी. पल्लवी सगळ्यात छोटी आहे ना? पल्लवी. हो. हा बघा, सगळ्यात छोटी आहे. आणि मग झाले आता 10 kg वजन कमी झालं. हेल्दी राहण्यासाठी मी जॉईन करते. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर तुमचा भरपूर रिझल्ट चांगलं. आम्हाला शेअर करा नंतर. तुमचा आम्ही रिझल्ट दाखवू. 10 किलो वजन कमी झाल्यानंतर आपण कसं कमी दिसतोय आपल्याला कळलं पाहिजे ना? येस हो. येस, खूप व्हेरी एनर्जी गुड. आली आहे, कॉन्फिडन्स वाढलाय. मग आज खूप छान सेलिब्रेशन वाटतंय. कसं करणार? बर्थडे सेलिब्रेशन कसं करणार? काय पुरी करायचंय भाजी ते. हो. का बाहेर? संध्याकाळी बाहेर पण जातो, कधी कधी घरी करतो. व्हेरी गुड. म्हणजे लाईफला एन्जॉय करताय तुम्ही. व्हेरी गुड. आणि शेक कुठला फ्लेवर तुमचा फेवरेट आहे?
आता सध्या कुल्फी आहे, ओके चॉकलेट कुल्फी, मँगो, ओके. 2-3 आणि फ्लेवर. अफ्रेश? आता फ्रेश रोज केळ. अफ्रेश अफ्रेश नाही नाही, इलायची आहे. हा, अजून वेळ आहे हो. रोज अफ्रेश मध्ये रोज किती यायला वेळ आहे अजून. नाही काश्मीरी नाही, कावा आलेले. ते काय ते. व्हेरी गुड. होतं असं कधीतरी. नाही, त्याच्यासाठी रोज रोज प्लॅटफॉर्मवर यायचं आणि थोडा गप्पा मारायच्या आमच्या बरोबर. ओके. सो विश यू मेनी मेनी रोज हॅपी असते रिटर्न्स. मॅडम. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू. यस यस यस, थैंक यू शिल्पा मैडम, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप ऐसे अपने Thank लाइफ you. में एंजॉय कीजिए और अपना रिजल्ट आ गया है, दूसरों को भी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। यही हम लोगों का यहाँ पर ये सबका एक मैसेज है कि हमें अपने वर्ल्ड को हेल्दी और हैप्पियर बनाना है। ओके, अपना आ गया तो दूसरों को भी अच्छा करना है। ठीक, तो आगे हम चलेंगे। एक अच्छे से बाय बाय सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, अब सभी लोग बाय बाय करेंगे। ओके, जब हमको दीवाना कहते हैं, सपने हैं बस तेरे, जा